Hello dear students, welcome to the video today. So children, we have completed the water resources chapter. Water resources was meant for the internal assessment. Of course, we needed to complete the chapter. We have completed it successfully. Now, my dear students, what we need to concentrate on is a very important chapter that is very important from the board point of view. First, we will be now completing the chapters that are important for board. बोर्ड के लिए जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जब हम ये कर लेंगे तो वी वुड बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन. सो जल्दी जल्दी बोर्ड्स वाले चैप्टर कर लेते हैं. आफ्टर दैट वी वुड बी डूइंग द चैप्टर्स विच वुड बी कमिंग फॉर द इंटरनल असेसमेंट. सो टुडे चिल्ड्रन वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर 6, political parties. Extremely important chapter. India being the largest democracy, the political parties play a very important role in the Indian democratic system. यहाँ पे हम देख रहे हैं that when we see the democracy, political parties के बारे में हमने बहुत बार देखा है. Many times we have seen, we have concentrated on we have seen that how the political parties work, and political parties का system भी कभी उथल पथल भी हो जाता है. Sometimes some political party is important and the other time some other political party becomes important. Political parties and their role is very very important in the rise of democracy. ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है. अदरवाइज क्या हो जाएगा, वी वुड बी लाइक चाइना, वन पार्टी है, कम्युनिस्ट कंट्री हो जाएंगे, या फिर मोनार्की रूल हो जाएगा, या फिर डिक्टेटर्स रूल हो जाएगा. वी डोंट वांट दैट, बिकॉज डेमोक्रेसी समथिंग दैट इज वेरी प्राउड टू बी अबाउट. And we are definitely very proud about this thing, that we are the largest democracy of the world, doing very well everywhere, posing a good example in front of the other countries. So we need to be very sure. Isme we have to see that the very nice statement is mentioned here, children. You need to see this. We have glanced at political parties as vehicles of federal sharing of political power. Federal sharing, central government, state government, 2-tier system. अभी तो 3-tier हो गया है. 3-tier से 4-tier भी आ गया है. 4-tier, अरे वो पंचायती राज इज देयर. पंचायती राज में जैसे 4-tier नहीं कहेंगे, थर्ड टियर में देर आर 2 पार्ट्स, जिसमें कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, एक तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, एंड अदर वन इज द रूरल पंचायती राज. ओके, yes, we will be understanding about these parties, how these parties function. फेडरलिज्म में वैसे हमने थोड़ा बहुत किया हुआ है, तो ये जो हम टूर करेंगे, let's take a close look at the nature and working of political parties. Now when we are seeing these political parties, पार्टीज में सबसे पहला ये आप देखने की कोशिश करो कि एक कंट्री के लिए, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, हाउ मेनी पार्टीज आर नीडेड. कितनी पार्टीज एक्चुअली हमें चाहिए. हाउ मेनी पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी. इसी को समझते हुए वी इंट्रोड्यूस द नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आज की डेट के लिए इन टूडेज इंडिया. एंड देन लुक एट व्हाट इज रॉन्ग विथ पॉलिटिकल पार्टीज. कुछ तो गड़बड़ी भी है. सारी चीज़ें हमेशा सही नहीं होती हैं. एवरीथिंग इज नॉट आइडल. समटाइम्स सम प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो देयर. तो वी इंट्रोड्यूस द नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज. हाउ दिस पार्टीज आर फॉर्म्ड, कब से काम कर रहे हैं, किस पार्टी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में. लेट्स डिस्कस ऑल दिस. The first thing that we need to understand is, do we really need a political party? क्या लगता है, पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी.
Institutions, we call the political parties as institutions because lot of things are there that we learn from these political parties. काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें we idealize from these political parties, their working, their system, their functions. Most ordinary citizens, ठीक है, is a democracy is equal to political party. For most ordinary citizens, democratic system का मतलब है कि yes, we identify the democratic system with the political party. Political parties अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो आगे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. Democracy runs in a very smooth manner. ठीक है. If we travel, ठीक है, किसी इंटीरियर पार्ट में जाते हैं, रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेस एजुकेटेड पीपल आर देयर, वी विल कम टू नो, बहुत ज़्यादा जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दे आर नॉट नोइंग और अबाउट द नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट. लेकिन ऐसा है, चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर, उनको कुछ पता हो नहीं हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ज़रूर पता हो. They might be surely and definitely knowing about the political parties. इसी के साथ at the same time it does not mean popularity. ठीक है, political parties are visible, political parties को हम देख सकते हैं, लेकिन क्या वो political party popular है? Some political parties are there which are very active, काफ़ी ज़्यादा उनके लीडर्स पॉपुलर हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को उतना रिकग्निशन नहीं मिल रहा है. द पॉलिटिकल पार्टी इज़ अनेबल टू, आई मीन, इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं. दे आर अनेबल टू गेट अ विक्टोरियस पोजिशन. ये जो विजिबिलिटी है, व्हाट वी कैन सी, डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी. खाली मतलब कि पॉपुलर होना, इसको वो दिख रहे हैं तो इसके वजह से पॉपुलर हैं, इट्स नॉट एज सच. मेनी पीपल आर वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. अरे ये पार्टी तो ऐसी है, इसको तो ऐसे काम करना चाहिए, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्शंस में भी हार रहे हैं, कुछ भी ठीक से काम नहीं करते, नॉलेज नहीं है. अरे बाबा, बिकम अ लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, देन पास कमेंट्स. Nobody wants to form a party. The people who are forming a party, the people, उनके लिए आप critical हो जाते हो, but when you are in their shoes, उनके जगह पे खड़े होके देखिए कितना difficult है. It's not an easy task. ठीक है, तो इसी टाइम, at the same time, ये visibility जो है, this does not mean popularity. Most people tend to be very critical of political parties. ये देखिए यहाँ पे some symbols are here, and साउथ की फोटोग्राफ है ये. आप देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज है, these are some of the what do we call as, ये जो दीवार पे जो ड्राइंग करते हैं ना, these are इसका कुछ खास नाम होता है. when you are making a drawing on when you are making a poster on a wall. Okay, now what happens is कि political parties are there, they tend to be they tend to blame parties. बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि अपने लीडर्स के ऊपर सारा ब्लेम गेम कर देते हैं. अरे ये तो काम करते नहीं हैं, अरे इनका क्या बताया जाए, इनको किस तरह से समझाया जाए. Parties, political parties that are there, they have become identified. Ab social and political divisions are there. Some of the political parties, they take advantage of that. Socially and politically, the country is divided. Social division, ये caste system and all, ये जो है ना जितना, this is social division. And political division में some parties are there which are very strictly related to the caste politics. कास्ट को बेस करके आगे बढ़ रहे हैं, कास्ट का नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं. वी नीड टू बी अवेयर ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टी हैं बट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सोशल सिचुएशंस इज नॉट डन. वो तरीका सही नहीं है. तो इट इज़ नेचुरल टू आस्क, पूछना बनता है कि क्या सच में पॉलिटिकल पार्टीज हमको चाहिए? डू वी रियली नीड पॉलिटिकल पार्टीज? 100 years ago क्या हुआ था कि देयर वेर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी थी. कुछ ही कंट्रीज थे जहाँ पे देयर वेर सम पॉलिटिकल पार्टीज.
अब political parties have become omnipresent. What do you mean by omnipresent? Omnipresent means political parties are found in each and every corner of the world, of the country. जिस country में हैं वहाँ पे भी बहुत evident हैं और पूरी दुनिया पे भी छाए हुए हैं. That is there. That is the meaning of omnipresent. Got it? All over the world. So let us first answer कि political parties are and what they do before we say why we need them. आखिर काम क्या करते हैं? हाँ भाई, हमको जो जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की, ऑफ कोर्स वी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज. वो क्यों है वो हम बाद में बताएंगे. पहले ये तो समझो कि व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी. ये पॉलिटिकल पार्टी होता है, देयर हैज टू बी अ डेफिनेशन फॉर एवरीथिंग, एवरी टर्मिनोलॉजी. So what is the definition of the political party? We are trying to understand that. Please remember children, 1 mark के लिए it's a very frequently asked question for board. What is a political party? It is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. Government में powerful बनने के लिए, powerful रहने के लिए कुछ लोग जो हैं, some people, they join hands together, they come together, their ideas are same, their ideology is same, and they try to work for the betterment of the country. country को आगे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ काम ये करते हैं. and they agree, कुछ policies हैं, कुछ programs हैं, इसके ऊपर ये अपना they have their consent for the society. they want to promote collective good. सबका भला चाहते हैं, एक्चुअली सबका भला चाहते हैं. लेकिन आज की सिनेरियो में अगर मैं कहूँ, आई वुड बी आयरन, इट इज़ एन आयरनी. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम बात कर सकते हैं, जिसमें कि द पॉलिटिकल पार्टीज फर्स्ट थिंक ऑफ देयर ओन बेनिफिट. पहले अपना भला सोचते हैं, बाद में देश का भला सोचते हैं. दैट इज़ ऑल्सो एविडेंट. तो डिफरेंट व्यूज़, व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, सबके लिए क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ भला है, क्या चीज़ किस तरह से होनी चाहिए. दे कम टुगेदर, सिट टुगेदर, एंड मेन थिंग दैट इज़ देयर, दे मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी. आम आदमी के भले के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉमन पीपल, द पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज वर्क टुगेदर. क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, दिस इज वॉट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इन दिस चैप्टर. ओके, आप ये देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये सिंबल है. एंड जस्ट सी हियर, हर तरीके के जगह पे जहाँ भी मिल रहा है, जहाँ भी थोड़ी सी खाली जगह मिल रही है, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का सिंबल बना हुआ है. एंड दे आर ट्राइंग टू प्रमोट देयर आइडियोलॉजी. ये देखो, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन हैज़ बैंड वॉल राइटिंग बाय पार्टीज. इलेक्शन के टाइम पे ना वॉल राइटिंग जो है बैन किया है. इलेक्शन कमीशन सेज हर एक दीवार के ऊपर आप अपने पोस्टर नहीं चिपका सकते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टी से हमारे पास पैसा ही नहीं है. वी डू नॉट हैव मनी कि हम अपना होर्डिंग्स बनाएं, बड़ा बड़ा अपना कटआउट्स बनाएं. नो, वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ मनी. सो ग्राफिटी, देखो जस्ट नाउ आई वाज सेइंग ना, देयर इज अ वर्ड ग्राफिटी ऑन वॉल्स. वॉल्स के ऊपर जब आप पेंटिंग बनाते हैं एंड यू आर स्प्रेडिंग योर मैसेज थ्रू द वॉल पेंटिंग, थ्रू द ग्राफिटी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने मैसेज को पब्लिक करते हैं. एंड तमिलनाडु के ये कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पे. सम ऑफ द पिक्चर्स आर देयर फ्रॉम तमिलनाडु, which is very clearly explaining कि पार्टीज का क्या मोड है. जस्ट सी हियर वी कैन सी एक कार्टून. अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज को लेके या ऐसे भी लॉट ऑफ कार्टून्स आर वेरी फेमस. द कार्टून कैरेक्टर्स, उनको मतलब कि पॉलिटिकल लीडर्स आर मेड फनी फेसेस बना के, और कुछ ना कुछ मैसेज, वेरी डीप इन डेप्थ मैसेज इज देयर इन दीज कार्टून्स. ये आप देखिए यहाँ पे बना हुआ है. और यू कैन सी द नेशन इन पेरिल. देश जो है ये ही इज आर के लक्ष्मण is considered to be the father of cartoon, the I mean cartoonist.
The best cartoonist ever that India has produced, R.K. Lakshman, is one of them. And he is saying brushing up the ears. ये देखिए यहाँ पे एक कितना ही टेम्पररी सा एक मंच बना हुआ है, एंड ऑल द लीडर्स आर स्टैंडिंग देयर एंड शाउटिंग एंड मेकिंग देयर पार्टी पॉलिसीज वेरी मच क्लियर टू द पीपल. वोट दें, हमको वोट दीजिए, वोट दीजिए. These kind of statements, these kind of messages are being passed, and this is something that is very funny. फनी इसलिए कि आप ये देखो, ये टेम्परेरी सा एक लकड़ी का एक मंच बनाया गया है और कील से ठोक के उसको लगाया गया है. कभी भी ये नीचे आ सकता है. इट कैन कोलैप्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. एंड इसको ध्यान में, इसको द पीपल आर हु आर स्टैंडिंग हियर, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ सीरियस इट इज़. कितना सीरियस मैटर है. बिना इसको समझे हुए अपनी अपनी बातें बताने में लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हैं दैट दे आर फॉरगेटिंग कि दे आर स्टैंडिंग इन पेरिल. तो ये देखिए, जस्ट सी द डिटेल्स आर मेंशन्ड हियर. ब्रशिंग अप द ईयर्स. लीडर्स अपनी अपनी एक ही जगह सारा माइक लगा के सब बै बोल रहे हैं. अब सोचो द पीपल हु आर देयर, उनको क्या समझ में आएगा व्हाट आर द मैसेजेस बीइंग स्प्रेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज क्या बताना चाह रहे हैं इससे थोड़ी क्लियर होगा. ओके, दिस इज व्हाट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई नीडेड टू टेल यू. अब देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल. परसुएड मीन्स लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रेस करते हैं, लोगों के पीछे काफ़ी मेहनत करते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं वाई देयर पॉलिसीज़ आर बेटर देन अदर्स. आप मेरी पार्टी को वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे. वी विल बी मेकिंग द अरेंजमेंट फॉर द कंटिन्यूअस वाटर, वी विल बी मेकिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स खोलेंगे, ऑल काइंड ऑफ प्रोमिसेस. एंड दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज. खाली बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, वो करते भी हैं. ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं, सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं. दे डू इट ऑल्सो in winning popular support, by winning popular support through elections. Elections में popular support मिलता है लोगों का, and अपनी policies ये लोगों के ऊपर लागू करना चाहते हैं through elections. Okay? अब आप देखिए, parties reflect fundamental political divisions. Politically the country is divided and lot of ideas are there, lot of points are there जो कि political parties promote करना चाहते हैं. Parties are about a part of the society and thus involve partisanship. This is a very important point, children. Partisanship is a big issue in the country, and I mean it is giving us lot of idea about the way पार्टीज आर फंक्शनिंग. पार्टीशनशिप क्या है पहले इसको समझो. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पार्टीशनशिप. ये देखो, पार्टीशनशिप में जैसे कि सपोज आई एम सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स. ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग एनी पार्टीज नेम बिकॉज it's an educational video. I am whichever party I am supporting, I have to keep it to myself. Party X I am supporting and I know that the party is doing nothing wrong. या देखो ये क्या है, it is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view. I know that the party decisions are wrong, I know that the party policies are wrong, but I tend to keep supporting the party. मैं जिस पार्टी को बिलोंग करती हूँ मैं उस पार्टी को सपोर्ट करती रहूँगी. दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ पार्टीशनशिप. पार्टीशनशिप का यही मतलब ही है. ओके, एंड इसमें क्या है, पार्टी इज नोन बाय विच पेयर इट स्टैंड्स फॉर, किसके लिए वो खड़े हैं, which policies, because if I am supporting a party, I am a blind supporter. That kind of an attitude when is practiced, that is called as partisanship.
Got it, children? So policies are there in support. It supports interests, it upholds. पॉलिटिकल पार्टी क्या है कि किस चीज के लिए द पार्टी इज स्टैंडिंग, विच पॉलिसीज इज द पार्टी सपोर्टिंग, एंड किसका इंटरेस्ट इट इज अपहोल्डिंग, सबसे ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. ओके, तो दैट्स वाई पॉलिटिकल पार्टीज हैव गॉट 3 components: the leader, the active members, and the followers. Leaders are there, active members are there. यस, लीडर्स के बिना तो पार्टी नहीं होगी ना. पॉलिटिकल पार्टी है तो लीडर का तो होना बनता है. सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द पार्टी इज द लीडर. लीडर अगर सही नहीं होंगे तो पार्टी सही नहीं चलेगी. ओके, उसके बाद सब मेंबर्स आर वेरी एक्टिव. कुछ मेंबर्स होते हैं पार्टी में ना जो कि बड़ा गजब का काम करते हैं. ओके, एंड देन देयर आर दी फॉलोअर्स. कौन पार्टी को फॉलो कर रहा है? पार्टी के अगर फॉलोअर्स ही नहीं होंगे तो लीडर लेके और एक्टिव मेंबर्स को लेके क्या करेंगे? फॉलोअर्स आर देयर ऑल ओवर द कंट्री. एक पार्टी है, उसको उसके फॉलोअर्स पूरी कंट्री में फैले हुए हैं, तभी वो पार्टी सही तरीके से फंक्शन कर पाएगी. प्लीज अंडरस्टैंड. सो चिल्ड्रन, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द बोर्ड. Who are who are the components of the political party? तो आपको बताना है लीडर, एक्टिव मेंबर एंड फॉलोअर्स. ये 3 मिलके जो है पॉलिटिकल पार्टी को बनाते हैं. अब हम समझेंगे, प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पॉलिटिकल पार्टीज व्हाट इज देयर फंक्शन. काम क्या करते हैं ये? व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू? कुछ काम नहीं करते ना, खाली चिल्लाते रहते हैं ना. No, my dear students, they work and they really work and they really work very hard. बहुत ज़्यादा काम करते हैं ये. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज दे फिल अप दी पॉलिटिकल ऑफिसेस. जितने भी पॉलिटिकल ऑफिसेस आर देयर, पॉलिटिकल systems are there, डेमोक्रेसी द वे इट इज़ रनिंग, एंड पॉलिटिकल पावर को वो एक्सरसाइज करते हैं. तो पार्टीज कैसे करते हैं ये काम? बहुत सारा काम है जो पार्टीज को करना पड़ता है. बहुत प्रिपरेशंस आर देयर. अ पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट एग्जिस्ट टिल द टाइम the first function party, a political party becomes a political party when they contest elections. First and foremost thing is that कि every political party needs to contest elections. First thing. ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में क्या है, इलेक्शंस कैसे होते हैं? मेनली इट इज़ फॉट अमंग द कैंडिडेट्स. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड किसको कहाँ से टिकट मिलता है. If I want to be a part of any XYZ political party, and if the political party is supporting me and likes my working, then the political party will give me a ticket for some उसके लिए कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, and then I would be a member of that political party and I would be contesting the election. So the candidature is given by the political parties to the people, and parties select their candidates. वो select करेंगे कि कौन कहाँ से elections contest करेगा. That does not depend on an individual. कुछ countries में क्या है, such as USA, members and supporters of a party choose its candidates. The members are there, the supporters are there. वही चूज करते हैं कि कौन elections contest करेगा. ओके, अब ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं, मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड. ये तरीका जो है ज़्यादातर कंट्रीज में फॉलो होता है. पॉलिटिकल पार्टीज डू एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. नहीं, even China is also having. China is one party system, but then political party is there na. The Communist Party of China that is there, it is one of the most powerful parties of the world.
पूरी दुनिया में। तो मोर एंड मोर कंट्रीज आर देयर विच आर फॉलोइंग दिस मेथड। इंडिया में क्या है, टॉप पार्टी लीडर्स जो सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पे हैं, दे चूज द कैंडिडेट्स फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। पार्टी डिसाइड्स कि उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा। द पार्टी मेंबर्स, वन पर्सन कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम द होल कंट्री ना। केरला में देयर इज कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, तो बीजेपी की तरफ से कौन कॉन्टेस्ट करेगा। इलेक्शंस में जो पार्टिसिपेशन है उसमें हाउ विल द पीपल पार्टिसिपेट, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। पहला तो हो गया फंक्शन। प्लीज रिमेंबर इट्स फॉर 5 मार्क्स। इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। पहला तो है कि व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज एंड देन व्हाट आर द फंक्शंस दैट दे परफॉर्म। फंक्शंस वाला जो टॉपिक है जनरली इट कम्स इन 5 मार्क्स। तो अब पहले तो उन्होंने इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर लिया। नाउ आफ्टर द पार्टी हैज़ वन, या पार्टी विन अगर नहीं भी किया है तो भी पार्टीज आर पुटिंग फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। कौन सी चीज़ों को लेके पार्टी आगे बढ़ेगी, विच पॉलिसीज द पार्टी विल कैरी फॉरवर्ड। हर एक का, ईच ऑफ अस में हैव डिफरेंट ओपिनियंस अलग हैं, व्यूज़ अलग हैं। व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर दी सोसाइटी। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर आइडियोलॉजी, ऑफ कोर्स दे सी द सोसाइटी कि आखिर समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है, लोगों को क्या चाहिए, उसी हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। द पॉलिटिकल पार्टीज दे डू फ्रेम देयर पॉलिसीज एज पर द नीड्स ऑफ द पीपल। सो लेकिन कोई भी, नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़। अब जहाँ पे 125 करोड़ लोग रह रहे हैं, सो मैनी पीपल आर स्टेइंग टुगेदर, सारे लोगों का व्यूज़ तो नहीं मान सकते ना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक एवरीवन हैप्पी इन द कंट्री। सबको खुश नहीं किया जा सकता है, किसी न किसी की कुछ न कुछ परेशानी हमेशा रहेगी। नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़। डेमोक्रेसी में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप टुगेदर। एक साथ मिलके काफ़ी सारे व्यूज़ को साथ में रखा जाता है एंड कॉमन चीज़ें देख ली जाती हैं कि ऐसा क्या करें जिससे कि सबका भला हो। एवरीबडी इन द कंट्री शुड बी बेनिफिटेड, दैट इज़ द प्रायोरिटी। सबसे पहले उस चीज़ को देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस, ये देखो, हैव टू बी ग्रुप टुगेदर। गरीब को क्या चाहिए, अमीर को क्या चाहिए, लोअर कास्ट को क्या चाहिए, अपर कास्ट को क्या चाहिए, ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। एंड a direction is provided in which policies can be formulated by the government. अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज़ बना रही है। सो यही काम है पार्टीज़ का। दिस इज़ व्हाट द पार्टीज़ डू। अब पार्टीज़ जो है वो रिड्यूस करती है वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू फ्यू बेसिक पोजीशंस। काफ़ी सारे लोगों की ओपिनियन लाके it is compiled into a common opinion which it supports, and a government, what is it expected to do? They are making its policies, they are framing their policies on the line taken by the ruling party. देखो, ruling party तो एक ही होगी ना। government will be made by one party only, द पार्टी विच हैज़ गॉट द मैक्सिमम वोट। आम आदमी जब इलेक्शंस में वोट करते हैं तो जो पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिलती है, द पार्टी विच इज़ गेटिंग द मेजॉरिटी वोट, दैट फॉर्म्स द रूलिंग पार्टी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट रूलिंग पार्टी होल्ड्स अ वेरी पावरफुल पोजिशन इन द सिस्टम। पूरे सिस्टम में रूलिंग पार्टी का बात तो अलग हो ही जाता है, तो उसी हिसाब से आगे की चीज़ें भी कैरी फॉरवर्ड होती हैं। ओके, थर्ड पॉलिसी, चिल्ड्रन, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। ठीक है, पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर मेकिंग लॉज। कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं?
This we will be discussing in the next video. Till then, children, thank you so much and all the best to you.